Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the lecture number 5 for the JNU Environmental Science MSc previous year 2019 paper. I would request you to subscribe our channel and contact us for the latest study material in this number. So in this type of paper you will get 75 question. Out of 75 question, 50 question will be of 1 marks and 25 question will be of 2 marks. So let us discuss some questions. The first question in this video asks, which of the following statement about the function f of x dot sine 1 upon x for x not equal to 0 and f equal to 0 is correct? Okay, so this question is coming from the limit and differentiability session. Okay, limit and differentiability chapter. So you should know the formulas for limits and differentiability and the general formula to calculate the limits and differentiability. Okay, so the first question asks, which of the following statement about the function f of x dot sine 1 upon x for x not equal to 0. So अगर हम इसको लिखें in the form of limit के फॉर्म में, अगर क्वेश्चन को बनाएं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि x f of x bracketed 1 upon sin x, ओके, x नॉट इक्वल टू 0, और 0 कब होगा? जब आपका x इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, सो ये आपका फंक्शन का राइटिंग पार्ट है. ठीक है, अगर हम चलते हैं फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन साइन x की, जैसे कि बात की क्वेश्चन में वो मेंशन है. ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाने के लिए, फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, लिमिट शुड बी एग्जिस्टिंग. ओके, लिमिट्स एग्जिस्ट होना चाहिए. सो लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए आपको LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए. दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट शुड बी इक्वल. Okay, and the limit value is also equal to the functional value, that is f of 0 equal to 0. That is already given. Okay, but the left hand and right hand limit should be same. Okay, this is the condition for what? For a function to be continuous. Okay, so let us suppose, as we know the sine theta, okay, as we know the sine theta lies domain of the sine theta. Okay, the domain and range of the sine theta, you should know all the domain and range of the trigonometric functions. So the range of sine theta is between -1 to 1. This is the range of sine theta. So we are writing it here, -1 less than equal to sine theta less than equal to 1. Okay, so if you put theta as 1 upon x, so you will get -1 less than equal to sine 1 upon x less than equal to 1. This is the second step. Now you can multiply x throughout the equation. If you multiply x throughout the equation, you will get the f of x. Okay, you are getting f of x in the middle. Okay, now taking the limit, okay, taking the limit on both the side or throughout the equation using the Sandwich theorem. There is a theorem, that is Sandwich theorem. You can use the Sandwich theorem and you take the limit. Okay, so the left hand side will be termed as LHL. This will be LHL, left hand side limit, this is LHL. Okay, this is RHL, this is right hand side limit, this is RHL, and this is the function. Okay, so if we put, you can put it here. Okay, you are getting that limit x tends to 0 minus of x is less than equal to limit x tends to 0 x sine of upon 1 upon x less than equal to limit x tends to 0 plus x. So it satisfies.
because as we know the LHL is equal to functional value limit and RHL. It came, okay, it came in this form. That's why the f of x is continuous at x equal to 0. तो बेसिकली आपको यही जानना है कि आपका जो RHL और जो LHL है उसको इस फॉर्म में आना चाहिए कि आपका LHL जो हो वो आपका फंक्शनल वैल्यू से इक्वल हो जाए, ठीक है, f ऑफ x से इक्वल हो जाए, ठीक है, और साथ एट जीरो मतलब लिमिट के पोजीशन पे जीरो, ऐसा नहीं कि कहीं भी है, एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू जीरो, ठीक है, x इक्वल टू जीरो पे ही आपका वो इक्वल हो और साथ ही साथ वो RHL से भी इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सैंडविच थ्योरम यूज करके उसको डिफाइन कर दिया है कि LHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू इक्वल टू RHL. दैट्स व्हाई the f of x is continuous at x equal to 0 but not derivable at x equal to 0. This is the answer. So ये not derivable at x equal to 0 कैसे है, चलिए देखते हैं. So डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट तो होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस हो गया भाई, इन दी पहले स्टेटमेंट में जब हमने प्रूव किया तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस हो गया भाई, लेकिन अब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं वो भी देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, या इक्वल होता है या नहीं, इस चीज को देखना है। ओके, दिस इज दी कंडीशंस यू शुड नो, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस यू शुड नो। ओके, सो जैसे कि पता है आपको f of x इक्वल टू x sin 1 upon x, this is the statement given. Okay, so if you take the derivative, first order derivative, okay, तो first order derivative कैसे लेते हैं भाई, f of x लेते हैं माइनस f of 0 करते हैं, फिर अपॉन x माइनस 0 करते हैं। अगर आपको यहाँ पे वो a दिया रहता, ठीक है, f डैश x एट a की बात करें, एट a दिया रहता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे f of x, ठीक है, फंक्शन ऑफ a, ठीक है, डिवाइड बाई x माइनस a करते। तो क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा है कि 0 पॉइंट पे वो उसकी डेरिवेटिविटी है या नहीं है, वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, डेरिवेबल है या नहीं है, तो आपको 0 लेना होगा यहाँ पे। सो फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, x इंटू साइन 1 अपॉन x माइनस 0 कर दिया, x अपॉन 0 कर दिया, x आपका कैंसल आउट हो गया नेक्स्ट स्टेप में, तो आपका जो फाइनल आंसर बचता है दैट इज साइन 1 अपॉन x। तो f डैक्स की वैल्यू मतलब डिफरेंशिएशन जो करने के बाद आपके फंक्शन की जो वैल्यू आती है दैट इज साइन 1 अपॉन x। ओके, अगर हम बात करें x को 0 लेने की यहाँ पे, तो आप साइन इन्फिनिटी टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो साइन इन्फिनिटी जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि साइन इन्फिनिटी नाम की कोई चीज होती नहीं है, वो नॉट डिफाइंड होती है। तो आपकी f डैक्स जो होगी दैट विल बी नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो f डैश x फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड होने की वजह से ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 0। सो आवर कंडीशन सेटिस्फाई। तो क्या था कि हमारा फंक्शन जो हुआ वो कंटिन्यूअस हुआ, दैट इज कंटिन्यूअस, ओके, कंटिन्यूअस हुआ बट नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, डिफरेंशिएबल नॉट, ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। तो ये आपका आंसर है। The next question they are asking, the square of the times of revolution of a planet are proportional to the cubes of their mean distance from the sun. This statement is known as which of the following law? Okay, so this is the question. तो ये डेफिनेटली हमारा केपलर्स थर्ड लॉ होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं केपलर्स के 3 लॉ के बारे में जानने के लिए, पहले उसको जान लेते हैं कि व्हाट आर द 3 लॉज इन द केपलर्स। तो फर्स्ट लॉ टेल्स दैट ऑल प्लैनेट्स मूव्स अबाउट द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग सन एज वन ऑफ इट्स फोकस। ये तो डेफिनेटली ट्रू है। सोलर सिस्टम होता है यहाँ पे, आपका सन यहाँ पे होता है और प्लैनेट मूव कर रहा होता है। अब क्योंकि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो एलिप्टिकल होते हैं, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में आपकी फोकाई होती है, ठीक है, आपकी फोकाई होती है, इस पॉइंट पे आपकी फोकाई होती है। तो ये जो होता है फोकाई होने की वजह से ये जो पहला स्टेटमेंट है वो काफी ट्रू है, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि रेडियस वेक्टर जॉइनिंग एनी प्लैनेट टू सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल लेंथ ऑफ द टाइम्स। ओके, सो इसकी अगर हम बात करें तो आप देखिए प्लैनेट जो है आपका यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका सन है, फिर ये प्लैनेट यहाँ पे भी पहुंचता है,
ठीक है। तो यहां से इतना टाइम जाने के लिए आपका, ठीक है, जितना टाइम लग रहा है आपका यहां से उतना जाने के लिए सेम टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आपका अगर एरिया इक्वली स्वीप होगा, आपका एरिया अगर इतना ही स्वीप होगा, सेक्टर, आपका एरिया का सेक्टर अगर इतना ही बनेगा, तो आपका जो कवरिंग टाइम है वो भी सेम होगा, मतलब यहां से इतना ट्रैवल करने की कवरिंग टाइम भी सेम ही होगी। तो उसी चीज की उसने बात की है। अगर हम थर्ड लॉ की बात करें, द स्क्वायर ऑफ द साइडरल पीरियड, ठीक है, ऑफ रिवोल्यूशन, तो आपका जो है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब्स ऑफ देयर मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जो कि हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपका केप्लर्स का थर्ड लॉ होगा। बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, दैट इज द पोटेमिल्स लॉ। तो पोटेमिल्स लॉ बोलता है कि बॉडी ट्रैवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑन ए सर्कुलर पाथ with the earth at its center sweeps out equal angle in equal times from a टेरेस्ट्रियल पर्सपेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे इक्वल एंगल्स की बात किया है, लेकिन हमारा यहाँ पे केप्लर्स लॉ था, तो हमने केप्लर्स लॉ को आंसर लगाया। तो ये दिस वाज नॉट द करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड की बात किया है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन जबकि हमारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। In the next question, they are asking if the magnitude of a vector A, B and C are 12, 5, 13 units respectively. The vector A plus B equal to C. This is also given. The angle between the vector A and B is. Okay. So, the magnitude of the vector is given this. This is 5. Okay, and the 13 respectively, where the vector A plus B equal to C. Okay, if their vector is like this, then their magnitude is related like this. Okay, so their magnitude will be telling as modulus of A square plus modulus of B square plus 2 modulus A modulus B cos theta equal to modulus of C square. This is the required condition for the magnitude. Okay, so putting the values 12 square, 5 square, 2 into 12 into 5 into cos theta equal to 13 square. Okay, so 12 square equal to 144, 5 square 25, 120 cos theta. Finally 169 will be cutting out, that is turning into 0. So the cos theta will be 0 and the theta will be 90 degree, that is equal to pi radian. Okay, so you should know that pi equal to 180 degree, pi radian equal to 180 degree. From these you should answer that the answer will be pi by 2. Okay, this will be the answer. In the next question, they are asking the internal energy of a monoatomic ideal gas in the molecule is. Okay, so in the ideal gas there is a condition that there is no interparticle interaction, किसी भी पार्टिकल का एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं होता है, सब अलग अलग मूवमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। Therefore क्या होता है कि only the kinetic energy contributes to the internal energy. This is very true. So the answer will be the total kinetic energy. It is very true. Let us discuss some facts that each degree of freedom contribute 1 by 2 kT, that where K is the Boltzmann constant and T is the temperature per atom to the internal energy. For a monoatomic gas with n atoms, its total internal energy will be U equal to 3 by 2 n kT. This is the formula. For diatomic gas, U equal to 5 by 2 n kT. So you should remember the lesson, that is kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases. This is very important topic. You should read kinetic theory of gases. Okay, kinetic theory of gases. You should read this. So in thermodynamics, the internal energy is the total energy contained by a thermodynamic system. Internal energy has two components, kinetic energy and potential energy. The kinetic energy is due to the motion of the system of particle, that is translation, rotation and vibration, while in ideal gas there is no interparticle interaction, as we have already mentioned. Therefore we will disregard the potential energy and only focus on the kinetic energy contributing to the internal energy. So this is true that
आपको ये चीज समझना है कि आपका जो इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन होता है, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से रिएक्ट नहीं करते हैं आइडियल गैस में, तो इस वजह से आपका वहां पे काइनेटिक एनर्जी ही जो होता है वही आपका टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को प्रोवाइड करता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वहां पे नहीं होता है। The next question, they are asking that colored glasses appeared white after being crushed to a fine powder because of the phenomena of light. Okay. So ये क्वेश्चन वेरी सिंपल था, बट आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि द कलर ऑफ मेनी सब्सटेंसेस इन द पाउडर स्टार्ट्स फेंटिंग बिकॉज द इंसिडेंट लाइट इज रिपीटेडली रिफ्लेक्टेड। तो अगर कोई भी चीज रिपीटेडली रिफ्लेक्टेड होती है फ्रॉम मेनी पार्टिकल्स डिफरेंट लेयर्स, सो इट इज अनेबल टू पेनिट्रेट मच बिलो टू एब्जॉर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे पेनिट्रेशन कम होता है, तो अगर आपकी पेनिट्रेशन कम होगी, when the powder is very fine almost no absorption takes place। अगर फाइन पाउडर होगा तो एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, तो पाउडर मास appears white due to diffused light reflected in all the direction। अगर आपका लाइट रिफ्लेक्ट होगा रिपीटेडली तो उससे क्या होगा कि एक वेवलेंथ दूसरे वेवलेंथ पे चढ़ जाएगा, वो फिर दूसरा वेवलेंथ तीसरे वेवलेंथ पे चढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो एक के ऊपर एक वेवलेंथ के जो चढ़ने को फेनोमेना को बोलते हैं हम इंटरफेरेंस। सो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ क्या, रिपीटेड रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस पैटर्न्स जनरेट होते हैं जो कि आपके टू वेव्स को मर्ज करते हैं और व्हाइट कलर को शो करते हैं। ठीक है, तो आपको इंटरफेरेंस के बारे में पता होना चाहिए। If we consider the question that asks color gas appears white after being crushed to a fine powder because of the phenomena, ठीक है, तो ये very simple question है। The color of many substances in the powder starts fainting because the incident light is repeatedly reflected from many different layers, so it is unable to penetrate much below to be absorbed। ठीक है, तो when powder is very fine almost no absorption takes place and the powder mass appears white due to diffuse light reflected in all direction। तो ऑल डायरेक्शन में अगर आपका कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन होगा तो आपका एक वेवलेंथ की लाइट दूसरे वेवलेंथ की लाइट के ऊपर चढ़ जाएगी, तो इस वजह से वहां पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट होगा जो कि आपका मेनली व्हाइट कलर के अपीयरेंस का रीजन होता है। तो आपका यही रीजन होगा आपका व्हाइट कलर के अपीयरेंस के लिए। In the next question they are asking if a simple pendulum is taken to a place where g decreases by 2%, then the time period is। So it is very simple question। It asks if a simple pendulum is taken to a place where g decrease by a 2%, then the time period is। तो time period का आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। time period equal to 2 pi root over of length of pendulum divided by acceleration due to gravity। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो t है आपका that is inversely proportional to 1 over root over g। ठीक है, तो अगर हम इसको चेंज के टर्म्स में लिखें, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ चेंज, ओके, सो t माइनस टी डैश अपॉन टी इंटू 100 इक्वल टू g माइनस जी डैश इंटू अपॉन g इंटू माइनस हाफ, क्योंकि आपका रूट ओवर g है। अगर हमको इस टर्म्स में लिखें तो आपका ये इस फॉर्मूले में लिखा जा सकता है। अगर हम फिर एरर टर्म्स की बात करें, ठीक है, ये चीज आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाले लेसन्स में पढ़ रखा होगा, जब आपने एरर कैलकुलेशन की बात की होगी तब उस समय में आप इस चेंज की वैल्यूज को पढ़ चुके हैं। तो ये उस तरीके से अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन एरर के फॉर्मूले में इस तरीके से हम बनाते हैं, तो आपका आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 इक्वल टू माइनस हाफ डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100। आपको पता है कि डेल्टा जी अपॉन जी जो है उसका डिक्रीज दे रखा है 2% का, तो माइनस 2% का अगर डिक्रीज होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे माइनस 2% का अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपका माइनस टू विल बी कट आउट, आपका जो आंसर होगा दैट विल बी 1%। सो द टाइम पीरियड जो होगा वो आपका इंक्रीज कर जाएगा 1% से, दिस विल इंक्रीज बाई 1%। ओके, सो द आंसर विल बी 1%, इंक्रीज बाई 1%। Okay, now the next question tells a star which appears blue will be what। ठीक है, तो अगर हम जनरल कंसेप्ट की बात करें, फॉर ए स्टार द ओनली थिंग दैट डिफाइंस द टेम्परेचर ऑफ ए स्टार इज इट्स मास। अगर हम मास की बात करें तो मास ही डिफाइन करता है आपके स्टार के टेम्परेचर को। ब्लू स्टार जो होता है दैट हैव एटलीस्ट 3 टाइम्स द मास ऑफ द सन एंड अप। ओके, वेदर ए स्टार हैज 10 टाइम्स द मास ऑफ सन और 150 सोलर मास, इट इज गोइंग टू अपीयर ब्लू टू आवर आईज। ठीक है, तो ज्यादा मास होगा तो ज्यादा ब्लू अपीयर होगा। ठीक है, अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स की बात करें तो हमको पता है कि एनर्जी जो होता है दैट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा।
ठीक है। अगर लैम्बडा आपका बढ़ेगा और डिक्रीज होगा तो उसी तरीके से आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हुए एनर्जी भी बढ़ेगा एंड डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज नहीं, दिस इज डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। ओके, आपका रिवर्स नहीं, आपका रिवर्स होगा नहीं तो डिक्रीज होगा। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन? ई और लैम्बडा। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमको भी पता है कि जो 7 कलर्स होते हैं, दैट इज वेवगाइड, दैट इज द विजिबल वेवलेंथ। यू नो दैट दिस विजिबल वेवलेंथ अगर की हम बात करें, किसी भी हम विजिबल वेवलेंथ की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वेवगाइड से जब आप रेड की तरफ जाएंगे तो आपकी वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि रेड लाइट की जो होती है हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ होती है रेड लाइट की। ठीक है, ब्लू लाइट की कम वेवलेंथ होती है, ये भी आपको पता है, 400 से लेके 700 तक की बात चल रही है, कम वेवलेंथ होती है। तो आपका सन जो होता है वो मेनली ऑरेंज एंड रेड कलर का होता है। इफ द सन एंड इज अपीयरिंग इन ऑरेंज एंड रेड कलर और द गिवन स्टार इज ब्लू, तो आपको ये भी पता है कि सन का जो वेवलेंथ होगा वो ज्यादा होगा आपके स्टार से। ठीक है, लेकिन आपकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? वो कम होगी स्टार से, क्योंकि आपको यहाँ पता चल चुका है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उस वजह से यू नो in physics there is a law, that is Stephen Boltzmann law. According to that you can mention E equal to E sigma a t to the power 4, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इस बोल्ट्जमैन लॉ के हिसाब से। तो अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा जो t टू द पावर 4 ऑफ सन जो है वो लेस देन t टू द पावर 4 ऑफ स्टार होगा। तो इसी वजह से आपका जो स्टार का टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा है आपके सन के टेम्परेचर से। दैट्स व्हाई इट विल बी मच हॉटर देन सन। ओके, दिस इज द सिंपल आंसर।